Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we will discuss class 10th civics chapter 3 and the heading is competition and contestations in democracy. So we are going to discuss this chapter in a very comprehensive manner. But before that, I want to tell you that we have discussed some of the points of these chapters like meaning of competition and mass struggle, and also we had discussed about role of mass struggle in democracy. Then we had discussed in a very comprehensive manner a student movement of Bihar. Related to it is also called total revolution movement, and it was led by Jayaprakash Narayan. And after that we had also discussed about emergency. Indira Gandhi has imposed emergency, and using article number, which article number, just comment in the comment section that Indira Gandhi had used which article to implement emergency in the country, and during emergency what had happened. All these things we had discussed in a very comprehensive manner, in very details. And then we had discussed that after the end of emergency what had happened. Election was conducted in 1977, and then uh, Congress party was removed from the center and a new party came into power, and the name of that party was Janta Party. It was called Janta Party, and Janta Party was a big coalition against the Congress party. And who has become the prime minister after when Janta Party came into power in 1977? Then who had become the prime minister? So Morarji Desai became the first non-Congressy prime minister at the center. Okay, in the year 1977 when Janta Party came into power. Okay, and after that what had happened? This government did not last long, and this government collapsed. So this was the story we had discussed in class, and we will discuss we had also discussed about Chipko movement, and we had discussed that it was started in Uttarakhand, and then Sundarlal Bahuguna was the leading this Sundarlal Bahuguna was leading this movement, and then Chipko movement. And then we had also discussed about Dalit Panthers. Yes, so Dalit Panther party was formed in Maharashtra. And then we had also discussed about Indian Farmer Union, and after that we had discussed about Tari Virodhi Andolan, Tari Virodhi movement in classroom. And also we have also discussed about Save Narmada movement. It was led by Narmada Medha Patekar. Yeah, so you know about it. After that, right to information movement. It's very important. These topics are, this chapter is very important from the examination point of view, because various questions are asked related to different movements, and also in objective you will find various questions from this chapter. Okay, so this chapter is very important from examination point of view, so you should know about it. And then people's struggle and movement in neighboring countries, and we have discussed about democratic movement in Nepal, how the monarchy was removed and democracy was established, and again monarchy was removed from the Nepal, and democracy was re-established in Nepal. So all these stories we had discussed. And then uh, we have also discussed about people's struggle in Bolivia. So for the water, there was a water crisis, and what had happened? The people of Bolivia started for the people of Bolivia started successful struggle for the privatization of water. So when new government came into power in Bolivia, so what that government did is to Bolivian government, the newly formed Bolivian government, given the supply of water to the private company, and the private company increased the prices of the water. So that's why people of Bolivia started movement, and then it became successful, and government had to government had to accept all the demands of the agitators and revolutionaries, and this agreement was annulled, and once again the responsibility to supply water to the people in Bolivia was given to the government, in the from the hands of uh, private company. Okay, now a struggle for democracy in Bangladesh, we had discussed about it. And then a struggle for democracy in Sri Lanka. In Sri Lanka there was problem related to language. In Sri Lanka there were two types of people. One was from
One was from the Indian people, Indian origin people who were living in Sri Lanka, who had migrated during the time of British. British had made them to Sri Lanka. They had taken all these people, so Tamil people, to Sri Lanka to work in the plantation agriculture. But when Britishers left, and they had already settled down, so they used to speak Tamil language, and the original inhabitants of Sri Lanka used to speak Singhali language. So there was a problem and tussles between these two groups. This led to the struggle for democracy in Sri Lanka. So this was their story. And then meaning of politics. Okay, so the most important section of this chapter is meaning of a political party. So from here we will start our discussions. Okay, so before that, what you should do, you should keep paper, or notebook and pen, and whatever I say and whatever I say to you to write in your notebook, and whatever, I will give you some of the questions, you will have to answer it. And then I will also highlight you to mark the points important for the objective point of view. Okay, so be ready and keep studying and be in the video. So let's start. First of all, we will discuss about political party. So first of all, we will discuss, here is a term political and then party. So we will first of all define what is political party, and before defining political party, we will discuss about what is politics. Okay, so let's start our video. First of all, we will discuss what is politics. So what is politics? Politics is the process by which people make decisions for a society. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज पॉलिटिक्स। राजनीति किसे कहते हैं, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, राजनीति। तो राजनीति किसे कहते हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वो इंग्लिश में बोले व्हाट इज पॉलिटिक्स। क्या है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस। पॉलिटिक्स क्या है? प्रोसेस है बाय विच पीपल मेक डिसीजंस फॉर अ सोसाइटी। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग डिसीजंस लेते हैं। किस चीज का डिसीजंस लेते हैं? सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, स्पेशली डिसीजंस रिलेटेड टू पावर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। और वो डिसीजंस किस तरीके का होता है? पावर से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड और पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों की भलाई से, लोगों के कल्याण से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं लेना, वही क्या कहलाता है? लेने का जो डिसीजंस लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो पॉलिटिक्स का डिफिनीशन आपको अपने नोटबुक में क्या लिखना है? व्हाट इज पॉलिटिक्स। एंड पॉलिटिक्स का ये डिफिनीशन आप लोग क्या कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच पीपल मेक डिसीजंस फॉर अ सोसाइटी, स्पेशली डिसीजंस रिलेटेड टू पावर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। जैसे यहाँ पे है ना, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, और ये पढ़ना था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्या मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखो क्या है, क्या अपने नोटबुक में लिखो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी और इसका आंसर लिखो। अ पॉलिटिकल पार्टी इज what you have to write, लिखो what is political party। so a political party is an organized group of people। political party क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोग, संगठित लोगों का एक समूह है। क्या है ये? संगठित लोगों का एक समूह है। हु शेयर कॉमन आइडियाज, जो शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? कॉमन आइडियाज, बिलीव्स एंड गोल्स। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी नेता होंगे, जितने भी लीडर्स होंगे, वो क्या शेयर करते हैं? कॉमन आइडियाज। मतलब एक ही आइडियाज के ऊपर विश्वास करेंगे, एक ही बिलीफ होगा उनका, विश्वास है। एंड गोल्स, लक्ष्य भी क्या होगा? सेम होगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिटिकल पार्टी। एंड अबाउट हाउ अ कंट्री शुड, और किसके रिगार्डिंग इनका कॉमन आइडियाज, बिलीफ एंड गोल्स होता है? अबाउट हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न्ड, मतलब देश का शासन कैसे किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग उनका क्या होता है? कॉमन आइडियाज होते हैं, कॉमन बिलीफ होते हैं एंड कॉमन गोल्स होता है। मतलब सबका एक ही मानना है कि हमें कंट्री को किस तरीके से क्या करना है? लीड करना है, रूल करना है। दियर एम इज टू गेन पॉलिटिकल पावर। और पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन एम, मुख्य मुद्दा क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है गेन पॉलिटिकल पावर, मतलब राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति उनके हाथों में आए। इसीलिए देखोगे कि इलेक्शंस कंडक्ट जब किया जाता है तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट टू कम इनटू द पावर। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने का प्रयास करेगा और जीत करके क्या बनाने का प्रयास करेगा? गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का प्रयास करता है, जिससे कि उससे क्या है? पॉलिटिकल पावर उसके हाथों में आए और वो लोगों के लिए क्या ले सके? डिसीजंस ले सके। जो उसका आइडियाज है, जो उसका बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग वो कंट्री को क्या कर सके? गवर्न कर सके।
तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी का जो आइडियाज है, बिलीफ्स है और गोल्स है वो अलग तरीके का है। कांग्रेस पार्टी जो है उसके आइडियाज और बिलीफ क्या है कि कंट्री को किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, उसका रूल करने का तरीका अलग है। बीजेपी का रूल करने का तरीका अलग है। जेडीयू, आरजेडी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या होते हैं, अपने अपने गोल्स एंड आइडियाज होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस एवरी पॉलिटिकल पार्टीज टू गवर्न गवर्न देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट को अपने तरीके से रूल करने का प्रयास करते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है। ठीक है, बाय सो व्हाट इज टू गेन पॉलिटिकल पावर बाय विनिंग इलेक्शंस। और कैसे ये लोग पावर को गेन करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो पावर को कैसे गेन करती है, बाय विनिंग इलेक्शंस, मतलब चुनाव को जीत करके, एंड इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और अपने पॉलिसीज जो उसकी नीतियां हैं वो लोगों की भलाई के लिए इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो पहले पढ़ लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। देखो कह रहा है क्या कि नाउ वी विल स्टडी द बिहेवियरल साइड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बिहेवियरल साइड को पढ़ेंगे। और कह रहा है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द बिहेवियरल साइड ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रूलिंग इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को चलाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल होता है तो किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड गेन द पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करेगी, इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, चुनाव लड़ेगी, और चुनाव जीतने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी प्रूव होता है उसे मौका मिलता है गवर्नमेंट बनाने का, और वो गवर्न करने का काम करते हैं गवर्नमेंट को। आगे नाउ वी विल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल पार्टी इन डिटेल। तो पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कर रहा है ये बुक, देखो कर रहा है क्या कि जनरली पॉलिटिकल पार्टीज implies those group of people। तो जनरली पॉलिटिकल पार्टी किसे बोलते हैं, जनरली पॉलिटिकल पार्टी implies those group of people who work for a common objective और aim। मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जिनका क्या हो, कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, कॉमन एम हो, मतलब सेम, सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर होगा सबका एम सेम होगा। क्या एम होगा, एम होगा व्हाट, टू गेन पावर, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यही सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखोगे कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, बाय हुक एंड बाय क्रूक दे ट्राई टू कम इनटू द पावर। एवरी पॉलिटिकल पार्टीज बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या होता है, किसी भी परिस्थिति में, मतलब पैसा खर्चा करके, विधायकों को खरीद करके, एमपीज को खरीद करके, कैसे भी हो सके गवर्नमेंट को बना लेना है। देखते हो ना, ये चीजें देखने को मिलती है। सो मेन एम क्या होता है पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो, पॉलिटिकल पार्टी का नेता बन रहे हो, तो क्या करोगे कि आराम से बैठ करके अपोजिशन में क्या करे, ये गवर्नमेंट को रूल करते हुए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को रूल करते हुए देखे, या फिर ट्राई करोगे कि हम भी पावर में आ करके और मलाई खाने का मौका मिल सके, है ना। मनी मिनिस्टर बनता है लोग और मंत्री बनता है तो उसमें कुछ टैक्स भी चलता है, अपना अपना टैक्स सिस्टम लगा करके रखा है कि जिससे कि खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था हो सके, और रूल करने का तो तरीका तो है ही। ओके, सो आगे देखो कर रहा है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लाइज दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और एम। इफ एम्स ऑफ द पार्टी इज रिलेटेड विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज वी कॉल इट अ पॉलिटिकल पार्टी। और अगर वो एम और अगर वो उद्देश्य किससे जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, लोगों के वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, पॉलिसीज डिसीजंस लेने से जुड़ा हुआ है, तब उस चीज को, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। इन एनी पॉलिटिकल पार्टी कर है क्या, इन एनी पॉलिटिकल पार्टी पीपल गेट टुगेदर फॉर अ जनरल एम। और बोला है क्या कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं, किस चीज के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, समान लक्ष्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू कास्ट वोट, कास्ट में ई नहीं होगा, ठीक है, CAST, वोट देने वाला। तो क्या है इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें, करेक्ट क्या, टू कास्ट वोट, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, टू फिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और जनरल एम क्या हो सकता है, लोग क्यों एक साथ आ सकते हैं, वोट देने के लिए, इलेक्शंस लड़ने के लिए, एंड टू फिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब जब गवर्नमेंट में आ जाए तो हम किस तरीके से रूल करेंगे, हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, नीतियां क्या होंगी, हमारे प्रोग्राम्स क्या होंगे, वो डिसाइड करते हैं। इट इज नोटेड हियर दैट द पीपल मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन एनी कॉमन ऑब्जेक्टिव, बट एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न्ड देयर मेंबर्स हैव कॉमन व्यूज ऑन अ जनरल एम। तो एक चीज ये भी याद रखना है पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग, क्या कि अलग देखो, मान लो आप वी आर नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, and majority of Indian people are not part of any political party, but and on a same objective, on a same what you can say, on a same issue, एक इशू है, कोई भी एक इशू है और उसके ऊपर अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकता है, लेकिन अगर आप जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाओगे तो जो पार्टी का
जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो व्यू पॉइंट होता है किसी इशू को लेकर के, उसी के रिगार्डिंग आपको बात करना होता है। देखते हो ना कि भले आप पर्सनली देखोगे कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि जनरली कोई भी इशूज है, कोई भी मुद्दा है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो ये क्या बोलते हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है उसको बताने का, उसको दिखाने का, उसको सोचने का, सारे के सारे नेता उसी भाषा में बात करते हैं, उसी पॉइंट को वो आगे रखते हैं, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है, और क्या बोल सकते हैं, जो उसका व्यू पॉइंट होता है किसी इशू को लेकर के, वही वो रखते हैं। भले वो पर्सनली विश्वास करे या ना करे, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है अपनी पार्टी का क्या व्यू पॉइंट है किसी पर्टिकुलर इशूज को लेकर के। ठीक है, तो ये है, तो कह रहे क्या यहाँ पे कि बट एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कंसर्न्ड, देयर मेंबर्स हैव common views on a general aim. Along with it, the members of a political party try to make others understand that their general aim is better than other people's aim. और political parties में ये क्या होगा कि अब देखो, अपना एक एम, अपना एक उद्देश्य बना लिया, और अपने उद्देश्य को बाकी पॉलिटिकल पार्टी से वो क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, बेटर दिखाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि देखो, एक पर्टिकुलर इश्यूज पे मेरा सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी का जो ये जो एम है, जो सोच है, वो बढ़िया है दूसरे से। जैसे बीजेपी के नेता अपने पॉलिटिकल पार्टी के उद्देश्य को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने जो आइडियोलॉजी है उसको बेटर दिखाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी के जो भी एम और उद्देश्य है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो, एंड जब इलेक्शंस आए तो इलेक्शंस में उसको वोट करें। और वही कांग्रेस पार्टी अपने एम एंड जो बिलीफ है उसको बढ़िया दिखाने का प्रयास करेगी इन कंपैरिजन टू जब बीजेपी से ये दिखाएगी कि बीजेपी ये कर रही है, उसके निगेटिव पॉइंट्स को बताएंगे, और बीजेपी कांग्रेस के निगेटिव पॉइंट्स को बताती है। क्या करने के लिए, लोगों की नजरों में बढ़िया बनने के लिए, बढ़िया अच्छा अच्छा करने के लिए, अच्छा उद्देश्य, मतलब हमारा जो एम है वो लोगों से बेटर है, ये है यहाँ पे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, क्या है, दैट when groups of people organize to form a political party, then their only aim is to achieve power or to influence power. और याद रखना हमेशा यहाँ पे क्या करा है कि एक चीज और अंडरस्टैंड करने वाली बात है, और कौन सी बात है कि when groups of people organize to form a political party, मतलब जब लोगों का समूह ऑर्गेनाइज होते हैं, एक साथ आते हैं, क्या करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। जब पॉलिटिकल पार्टी वो बनाते हैं तो कह रहा है क्या है, तो तब क्या करा है यहाँ पे कि देयर ओनली एम, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य होता है, और क्या उद्देश्य होता है, इज टू अचीव पावर और टू इन्फ्लुएंस पावर। मतलब या तो पावर को क्या कर लो, प्राप्त कर लो, या फिर अपनी शक्ति से पावर को क्या करो, इन्फ्लुएंस करो, प्रभावित करो। तो देखते हो ना कि जो पॉलिटिकल पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टीज which are unable to come into the power, they sit into opposition and tries to influence the government, they tries to create pressure over the government so that the decisions can be changed, जो या फिर जो भी पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट का, उसमें बदलाव ला सके। तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या उद्देश्य होता है, या तो पावर में आना, पावर को अचीव कर लो, और अगर अचीव नहीं कर सके तो क्या करो, पावर को इन्फ्लुएंस करो, उसे प्रभावित करो। ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज का काम। ठीक है, तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये फॉर्म किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्या, पावर गेन करना, सत्ता में आना, सरकार बनाना, यही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखो, इन इंडिया फॉर दिस अ पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर्स इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और सत्ता में आने के लिए, पावर में आने के लिए वो क्या करती है, दे प्रिपेयर इट्स ओन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इन इंडिया पार्टी सिस्टम इज कंसिडर्ड टू स्टार्ट इन 1885। याद रखना कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कब से स्टार्ट होता है, 1885 से। और 1885 से क्यों, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का की स्थापना से। आज की जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 को, 28 दिसंबर 1885 होगा। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी नेशनल एंड रीजनल पार्टीज came into existence. Here it is necessary to know that the political party first originated in the world in Britain. तो ये आपको याद रखना है कि ये देखो, ये आपके क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपके क्या बोल सकते हैं, सेंटअप एग्जामिनेशन में यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था आपको। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, दैट पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड इन ब्रिटेन, मतलब विश्व में पहली बार पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत कहां से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, हियर आगे है, हियर इन 1688 आफ्टर द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन
two political parties were formed, namely Whig and Tory, which later known as Liberal and Conservative respectively. और यहां से देखो दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि वर्ल्ड में सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है कहां पे होता है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में कब होता है? तो आफ्टर 1688। तो 1688 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था ब्रिटेन में, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवपूर्ण क्रांति। वाई इट इज कॉल्ड? सोच के देखो, एक रिवॉल्यूशन को ग्लोरियस कैसे बोला जा सकता है? इस रिवॉल्यूशन, देखो कभी भी रिवॉल्यूशन होता है ना, रिवॉल्यूशन हम लोग हम पढ़ाए भी है आपको कि दो तरीके का होता है। एक पॉजिटिव वे में, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन या डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन है जिसमें मैसिव चेंज आता है, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो ये भी एक तरीके का रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज। जो पहले से चली आ रही है व्यवस्था है उसमें अचानक से बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रिवॉल्यूशन जैसे पहले कल कारखाने में हाथों से सामान बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे, कपड़े बुने जाते थे, और जब इंडस्ट्रीज मशीन आ गई तो उससे बहुत बड़े पैमाने पे कम समय में इन ह्यूज क्वांटिटी क्लोथ्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, सो दैट वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसी तरीके से खेती बाड़ी में भी देखोगे तो अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ह्यूज अमाउंट में ग्रेन्स का होने लगता है, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन एक और भी रिवॉल्यूशन होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट होते हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए जब लोग एकजुट होकर के वायलेंस का सहारा लेते हैं, ये क्या बोलते हैं? हिंसा का सहारा लेकर के हिंसा भी करते हैं, और हिंसा के बल पे जो पहले से मौजूद सरकार है उसको हटाने का जब प्रयास किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये चीजें हुई थी कब कब हुई थी? इंग्लैंड में 1688 में। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन था ना, जब लोग अपने किंग के अगेंस्ट में एक मूवमेंट लेकर के चलते हैं इंग्लैंड में, और वहां का जो किंग है वो रेडी हो जाते हैं इनके बातों को मानने के लिए, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश होता है। तब एक बूंद बिना, मतलब किसी भी व्यक्ति का बिना एक बूंद गिरे हुए, मतलब वेस्ट हुए हुए, मतलब किसी का कोई वायलेंस नहीं यहाँ पे देखने को मिला, और ये जो रिवॉल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1688 में। और जैसे ही ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ये होता है उसके बाद ब्रिटेन में दो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विग एंड टॉरी। मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम क्या है? विग एंड टॉरी। और बाद में विग को क्या बोला गया? लिबरल पार्टी। बाद में विग को क्या बोला गया? लिबरल पार्टी। और टोरी को क्या बोला गया? कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो दो आपको याद रखना है। ब्रिटेन में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा? लिबरल एंड कंजर्वेटिव। अर्लियर लिबरल वर कॉल्ड विग एंड टोरी को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन यूएसए। ठीक है, ये आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कब, व्हेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इन क्लास 9th वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन वेरी डिटेल्स। आगे देखो, अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने सीख लिया व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिक्स। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का जब फॉर्मेशन होगा तो ये कार्य क्या करते हैं, इनका काम क्या है। अब वेन एवर यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन व्हाट यू विल हैव टू डू। व्हेन यू विल बिकम अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन व्हाट वुड बी योर फंक्शंस। आप करोगे क्या, ये चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, कोई आप में से कोई है ना पॉलिटिकल पार्टी आगे चल करके नेता बनेगा लोग, तो नेता जब बनोगे तो नेताजी बनने के बाद क्या करोगे? घूस खाओगे? हैं? अपना पावर दिखाओगे या फिर और कुछ करोगे? देखो वही पढ़ना है। देखो क्या है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या करें यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लाइफ ऑफ दे आर कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, विच इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। तो लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है डायरेक्टली, विच इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए क्या बन चुका है? पर्याय। मतलब ये वी कैन से दैट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। इतना बोल सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लाइफ
ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आर, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के मेन मेन फंक्शंस क्या है, क्या क्या वो कार्य करती है। तो पहला है टू फिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब फर्स्ट जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या है, टू फिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मतलब नीति और प्रोग्राम्स बनाने का ये काम होता है, ठीक है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने के काम है। क्या है ये, देखे देखो करे क्या, पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का सपोर्ट लेने के लिए एवरी पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पॉलिसीज, मतलब अपनी नीति बताता है कि जब कभी भी इलेक्शन होने वाला होगा ना तो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज try to convince the people that our policies are better than other political parties, and on that basis they get support of the people। जैसे आप देखोगे रिसेंटली जो बिहार का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या किया गया कि अब जो ये नीतीश कुमार जी वाली जो पार्टी है और उनके जो गठबंधन था एनडीए, उसने क्या दिया, 10,000 रुपीज दिया महिलाओं को, और साथ ही साथ ये बोला कि जब हमारी पार्टी आएगी तो आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ये भी 10,000 क्या है, थोड़ा इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन योर वर्क विल बी एनालाइज्ड एंड यू विल गेट व्हाट, 10,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज। तो ये क्या उसकी पॉलिसीज है, उसकी नीति है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस भी किए कि 1 करोड़ हम लोगों को जॉब देंगे, आने वाले जो 5 ईयर्स है उसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये क्या बताता है, ये दीज आर कॉल्ड द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलायंस पार्टनर्स, अपने अपने अलायंस जो है। जैसे आरजेडी का जो अलायंस पार्टनर महागठबंधन था उसने क्या बोला था कि हर एक घर में क्या देंगे, नौकरी देंगे। तो ये भी उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, पॉलिसीज का लगेगा कि अब एवरी पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज बिफोर द पीपल एंड पीपल हैव टू डिसाइड दैट व्हाट वी शुड डू। वो अपना प्रेफरेंस दिखाते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के ऊपर लोगों का विश्वास होता है उसको वोट देते हैं और वो पावर में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। आगे देखते हैं करे क्या, they fight elections on the basis of these policies and programs। political party present their policies and programs to the people through speech on radio। और हर एक political party, every political parties put forward their policies and programs before the people through various means, like through speech on radio, रेडियो पे स्पीच देते हैं। रेडियो का तो जमाना चला गया, और न्यूज थ्रू न्यूज पेपर्स, तो देखोगे ना कि जब इलेक्शन हो रहा होता है तो न्यूज पेपर्स में बड़े बड़े ऐड हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक एक पेज का ऐड देखने को मिलता था। साथ ही साथ अभी तो यूट्यूब का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया पे भी देखोगे तो प्रचार आ रहा था। अब इलेक्शन खत्म हो गया तो प्रचार खत्म हो गया। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी हुज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड टू स्ट्रेंथन द नेशनल इंटरेस्ट अट्रैक्ट द वोटर्स। और जिस पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बेटर होता है वो वोटर्स को अट्रैक्ट करता है और चुनाव जीत जाता है। आज देखोगे तो कितने हैं, एनडीए को कितना सीट मिला, 202 सीट्स मिला ना, कितने में से, 243 सीट्स में से, जिसमें नीतीश कुमार जी ने क्या किया, प्रॉमिस किया था महिलाओं को कि 10-10 हजार रुपया सबके अकाउंट में दिया गया और उसके बाद बोला गया कि 2-2 लाख रुपया और दिया जाएगा। तो लोगों को लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ और भी उनके जो डेवलपमेंटल वर्क्स है ऑन दैट बेसिस एंड फॉर लॉ एंड ऑर्डर देयर आर वेरियस इश्यूज अकॉर्डिंग ऑन दैट बेसिस पीपल वोटेड दिस दिस अलायंस पार्टनर, ठीक है। नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो पावर में आ जाते हैं तो किसको हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को हैंडल करते हैं। कैसे, द पॉलिटिकल पार्टी हैंडल्स द गवर्नमेंट बाय गेटिंग मेजोरिटी इन द इलेक्शन। और अगर बात करें गेटिंग मेजोरिटी का मतलब क्या है, तो देखो जब कभी भी इलेक्शन होता है ना तो फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होता है। जैसे अगर बिहार में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट होती है। इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल की, देयर आर 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज एट द नेशनल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा जो है लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ दे तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अगर जब इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो उसके पर्टिकुलर सीट्स होते हैं एंड ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट्स आर फॉर्म। तो अगर बात करें फिर टॉक अबाउट द बिहार गवर्नमेंट, तो बिहार गवर्नमेंट में के लिए जब चुनाव होता है तो कितने सीटों पे होता है, तो आपको पता होगा कि इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी सीट्स आर देयर, सो 243 एंड फॉर 243 सीट्स इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन बिहार व्हाट इज द मेजोरिटी मार्क टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन बिहार। तो आप देखोगे कि 243 सीट्स में से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी अलायंस पार्टी को, जितने जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनको अगर
उन या तो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो जाए या फिर मिल करके पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कितना मेजोरिटी मार्क होगा, तो हाफ से वन ज्यादा, कितना, हाफ से वन ज्यादा होना चाहिए। तो हाफ से वन कितना हो जाएगा, 243 है, तो इसका हाफ से वन क्या होगा, 101, कितना हो जाएगा, 142, और एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी का 122 विधायक हो जाएंगे, 122 एमएलए जीत करके आएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी या वो अलायंस पार्टनर्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे देखोगे जब बिहार का इलेक्शन ये 2025 में हो रहा था, तो इस इलेक्शन में आप देखो तो दो अलायंस पार्टनर्स फाइट करे थे। वैसे तो देयर वर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलायंस पार्टनर्स फाइटिंग इन दिस इलेक्शंस, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज लाइक जनसुराज एंड ऑल दिस थिंग्स, बट देयर वर टू मेजर अलायंस पार्टनर्स इन बिहार इलेक्शन। फर्स्ट वन वाज एनडीए। सो एनडीए था, एक एनडीए अलायंस पार्टनर था, दूसरा कौन सा था, महागठबंधन, है ना, महागठबंधन। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी महागठबंधन थी। और एनडीए में आप देखोगे तो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो कौन से थे, तो बीजेपी थी, और कौन थी, जेडीयू, ठीक है, बीजेपी जेडीयू, और कौन सा, एलजेपीआर था, एलजेपीआर, और साथ ही साथ हम, जीतन राम मांझी वाली पार्टी, फिर आरएलएसपी थी। कितने पार्टी हो गए, पांच हो गए ना, एक दो तीन चार और पांच, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, हम कोalition बोलेंगे। एंड अनदर इधर साइड महागठबंधन में देखोगे तो कौन कौन सी थी, तो एक थी आरजेडी थी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी जिसे बोलेंगे, आईएनसी थी, ठीक है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे आप मुकेश सहनी वाला वीआईपी था, ये हो गया, एक आईपी गुप्ता का भी था, आईपी गुप्ता का पार्टी, और भी और भी कोई होगा स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सब मिलकर के लोग क्या कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। तो दो देयर वर टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हु आर फाइटिंग इन द इलेक्शंस। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को 122 से ज्यादा सीट मिला, तो देखोगे कि जो इनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है उस पे लोगों का विश्वास हुआ, और इन लोगों ने मिल करके कितना वोट दे, कितने सीट्स दे दिए, 243 में से 202। तो देखो तो मेजोरिटी मार्क को क्या कर गया, क्रॉस। तो आज देखो बिहार में किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और नीतीश कुमार क्या है, चीफ मिनिस्टर है। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम है। आगे देखो तो जब ये मेजोरिटी प्रूव कर देंगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इनको मौका मिलेगा क्या करने का, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का। गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लिए, चीफ मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, अब ये क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, डायरेक्शंस देंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलना है, कैसे क्या क्या डिसीजंस कब लेना है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये है दूसरा काम, टू हैंडल द administration. Third one is the political party which is known as the opposition party keeps a check on government and stops the government from doing any irregularities. अब देखो जो यहाँ पे अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई, वो तो अगर यहाँ पे इस मामले में देखा जाए तो जो एनडीए है वो क्या कर गया, चुनाव जीत गया। तो जीतने के बाद इन्होंने तो क्या बना लिया, गवर्नमेंट बना लिया, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। बट अब जो हार गई पॉलिटिकल पार्टी क्या वो पार्टी, और उसके भी कुछ एमपी जीते, तो क्या ये लोग घर पे बैठेंगे हाथ पे हाथ धर करके, या फिर इनका भी कुछ काम होगा, इनका भी कुछ रोल होगा। तो ये क्या करती हैं, द पॉलिटिकल पार्टी विच इज नोन एज ऑपोजिशन, ऑपोजिशन क्या बोलेंगे, ये है रूलिंग पार्टी। जैसे अगर बात करें तो जितने भी ये एनडीए के भी जितने भी एनडीए ग्रुप में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे वुड बी नोन एज रूलिंग पार्टी। इन्हें क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी, रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट में है। एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच लॉस्ट इन द इलेक्शंस विच वर अनेबल टू गेट द मेजोरिटी मार्क, जो मेजोरिटी मार्क को यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाए, जैसे उनका नहीं आ पाया 122 सीट्स नहीं आ पाया, तो क्या करेंगे, कुछ तो आया होगा। जैसे आप देखोगे महागठबंधन को कितना मिला है, 30, महागठबंधन को आई थिंक कितना मिला है, आरजेडी को तो 35 मिला है ना, हाँ आरजेडी और भी जो कांग्रेस पार्टी है उसको 6 मिला है। ऐसे करते करते कुछ जो इसके मेजोरिटी मार्क हो रहे हैं, मेजोरिटी मार्क बोल रहे हैं, इनको कुछ ऐसे सीटें मिली हैं। तो जब ये लोग क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे, नहीं, दे वुड कीप्स अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, मतलब ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर निगाहें रखेंगे, निगरानी रखेंगे। एंड स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग एनी इरेगुलरिटीज, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है वो गलत कार्य ना कर सके, लोगों के अगेंस्ट में डिसीजंस ना ले सके, लोगों के भलाई से जुड़ा हुआ ना, बल्कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अगर कोई भी ये जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस ले रही है, उससे लोगों का नुकसान हो, ऐसे डिसीजन से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये भी लोगों के लिए ही काम करते हैं। जो रूलिंग पार्टी वो तो डिसीजंस लेंगी, और जो अपोजिशन पार्टी है जो सत्ता में नहीं आ पाई, वो भी लोगों के लिए ही काम करते हैं, उनके मुद्दे को गवर्नमेंट के सामने रखती है। अब जब ये ऐसा काम करेगी तो लोगों का सहानुभूति बढ़ेगा, मतलब कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हार गए लेकिन अगले बार जिता देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। आगे क्या है, थर्ड हमारा,
थर्ड जो फंक्शन है वो टू हैंडल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन को क्या करना, हैंडल करना। इट मींस दैट दिस पॉलिटिकल पार्टीज फाइट एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस, मतलब ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं क्या है ये। आई थिंक वीडियोस तो लंबा नहीं हो रहा है ना, सोचे थे इसको पूरा का पूरा कंप्लीट ही करवा दे। ठीक है, कंप्लीट करवा देते हैं। देखो, टू हैंडल इलेक्शन, इलेक्शंस को हैंडल करना भी एक इन लोगों का फंक्शन है। क्या फंक्शन है, देखो कर है क्या। As political parties are necessary for democratic system in the same way election is necessary in party system। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से द वे पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पॉलिटिकल पार्टी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी क्या है, इन द सेम वे इलेक्शन इज नेसेसरी इन पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम में इलेक्शन नेसेसरी है। अगर इलेक्शन ना हो और पार्टी है तो उसका क्या मतलब, कौन लड़ेगा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि एज पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द सेम वे इलेक्शन इज नेसेसरी इन party system। We already know that all political parties frame their programs and policies according to their views and principles। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना क्या होता है, आइडियोलॉजी होता है, विचारधारा होता है, पॉलिसीज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। and the same programs and policies are kept before the people at the time of elections which is same as election manifesto। मतलब क्या करा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है ना कि जब हम आएंगे पावर में तो ये काम करेंगे, हम लोगों के लिए ये ऐसे ऐसे काम करेंगे। जब पावर में आ जाते हैं तो शायद भूल जाते हैं, कहते हैं हाँ क्या क्या मैंने डिसीजन क्या बोला था, ये तो पता नहीं है, बाद में देख के बताएंगे। ये सारी चीजें हैं। बट when they go to contest the elections, when they go to go before the people टू आस्क फॉर द वोट्स, तब वो क्या रखते हैं उनके सामने, कुछ तो बोलेंगे ना। तो इसके लिए वो अपने सामने जो भी उनकी पॉलिसीज है, उनके जो नीति है, उनके जो प्रोग्राम्स है वो सामने रखते हैं और उनके ऊपर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वोट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट एंड ट्राई टू विन द इलेक्शन। और देखते हो ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कहा जाता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या मिला है, टिकट मिला है, सिंबल्स मिले हैं। और ऑन दैट सिंबल्स दिस कैंडिडेट्स कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑन द नेम ऑफ their parties and policies of the party। Therefore, one main function of political party is to handle the election or contest the election। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, सारे जो भी फंक्शंस है ना वो आपको याद होने चाहिए। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मार्क करके रख लेना। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, टू फिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सेकंड क्या है, टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है टू हैंडल इलेक्शन, or you can say in another words you can say that to contest the election। next one is formation of public opinion। लोगों का विचार बनाना, लोगों में मतलब लोगों का विचार बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों का ओपिनियन का मतलब क्या होता है, विचार, मतलब लोग किस तरीके से सोचे, इसको भी मतलब लोगों की सोच को परिवर्तित करने का, एक पर्टिकुलर वे में सोचवाने का भी जो रोल है वो किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का, मतलब किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर। ठीक है, धर्म का देखते हो ना कि धर्म का, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम करना, ये भी लोगों के ऐसे इतने तरीके से बात करेंगे कि सब लोग सोचने भी लगता है उसी तरीके से। ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं। इन डेमोक्रेसी पावर इज गेन्ड बाय द सपोर्ट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में पावर कैसे होता है, जब लोग सपोर्ट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है। फॉर दिस यू नीड टू हैव पब्लिक ओपिनियन ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस काइंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय पॉलिटिकल पार्टीज विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मीट्स, रैलीज, न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो एंड टेलीविजन। ये लोगों का पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं कैसे, बाई हेल्प ऑफ पब्लिक मीट, मतलब पब्लिक लोगों के बीच में घर घर जाकर के मिलेंगे, या फिर रैलीज करेंगे। देखते हो ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज करती हैं, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो और टेलीविजन में लोग के माध्यम से लोगों के ओपिनियन को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो महागठबंधन है, इस बार के इलेक्शंस का ही एग्जांपल देते हैं, तो जो महागठबंधन है, आरजेडी है, तो जो एनडीए के पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेता थे, लीडर्स थे, वो क्या बात करते थे कि क्या आ जाएगा, इफ आरजेडी और महागठबंधन कम्स इनटू पावर देन इन बिहार देयर वुड बी जंगल राज। क्या आएगा, जंगल राज आएगा। मतलब इस तरीके से बोल करके लोगों को माइंड को क्या कर देना, डाइवर्ट कर देना, इस तरीके से बोलना ना कि लोगों को सही में लगने लगे कि हाँ हाँ अगर ये इस पॉलिटिकल पार्टी का ये जो ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो बिहार में क्या आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। भले आए या ना आए ये कोई नहीं जानता,
कोई नहीं जानता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना डर और ये सारी चीजें दिखाएंगे, इतनी बातें बोलेंगे कि लोगों का ओपिनियन बन जाएगा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और उसके बेसिस पे भी वोट क्या होगा, लोग उसको सपोर्ट नहीं, अगर उसके गलत चीजों के ऊपर लोगों का विश्वास हो जाए, भले वो सही रियलिटी में है या नहीं वो अलग बात है, तो अब क्या होगा कि ये सारी चीजों को देखते हुए लोग वोट उसको नहीं करेंगे, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो डर दिखा रहा है उसको वोट कर देंगे और वो जीत जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन, इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करके पावर में आ जाता है। नेक्स्ट है टू वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, टू वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, मतलब सरकार और लोगों के बीच में मीडिएटर, मध्यस्थता का काम करते हैं। वन मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज टू बी अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, मतलब लोगों और गवर्नमेंट, सरकार और लोगों के बीच में लिंक का काम करते हैं। जैसे देखते हो ना कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मंत्री जी के पास पहुंच जाओ और मंत्री जी तुरंत काम करवा देंगे, या फिर कोई भी नेता के पास पहुंचोगे तो वो फोन करते हैं ना, लगा देंगे, देखिए थोड़ा उसका काम ये कर दीजिए, ये सब चीजें हैं। तो वहां पे लिंक का काम कौन कौन बनता है, लिंक बनने का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आगे है पॉलिटिकल पार्टी पुट द प्रॉब्लम्स एंड नेसेसिटीज ऑफ द पीपल बिफोर द गवर्नमेंट एंड टेक द गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स टू द पीपल। इन दिस वे पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों की क्या समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखती है। और देखते हो कि जब पार्लियामेंट चल रहा होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब ये सेशन चल रहा होता है तो उस समय देखोगे कि विधायक जो है वो लोगों की समस्याओं को गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट में कौन, तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर्स हैं और भी जो नेता हैं उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोड की व्यवस्था नहीं है, ब्रिज की व्यवस्था नहीं है, स्कूल्स नहीं चल रहे, हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे, ये सारे प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं और ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन। तो ये भी है, दे वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन, दे वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो ये एक फंक्शन हो गया। 6 नंबर है पॉलिटिकल ट्रेनिंग। पॉलिटिकल ट्रेनिंग क्या है, देखो political parties also work to give political training to the voters, especially during the elections, to their supporters for the political works like how to cast vote, कास्ट में ये गलत यहाँ पे है, ठीक है, वोट इन इलेक्शंस एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। बियॉन्ड दिस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेलरेट देयर पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज टू कनेक्ट द वोटर्स विथ देमसेल्व्स व्हिच कुड मेक पॉलिटिकल कंज्यूमर्स अमॉन्ग देम। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने लोगों को क्या करते हैं, ट्रेन करने का काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में है, द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर इन ऑपोजिशन, then the leaders and the workers of that political parties would be trained how to criticize the policies and programs of the government, or the political parties which are in the power, that like the members of ruling parties, the leaders of ruling parties are trained how to defend the government, how to defend the policies and programs of the government, how to defend the decisions of the government, कैसे डिफेंड करना, उसकी रक्षा करना, उसको अच्छा कैसे बताना है, इसका ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। सो द 6th वन इज पॉलिटिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट वन इज पार्टी फंक्शन। पार्टी फंक्शन क्या है, सो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डज सेम वर्क, सेम सम पार्टी रिलेटेड वर्क्स लाइक to make maximum voters as their party members, to advertise their policies and programs and to collect contributions for the party। तो ये है पार्टी फंक्शंस है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी अलग अलग नेता है, मेंबर्स है, वो मेंबर बनाए, नए नए मेंबर्स को ऐड करने का काम करते हैं, अपने गवर्नमेंट के, अपने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस में क्या है, सो पॉलिटिकल पार्टीज नॉट ओनली do the political work functions, they also do the non political works like relief in natural disaster। तो मान लो कोई नेचुरल बाढ़ आ गया या फिर आप देखोगे भूकंप आ गया, तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो जो डेडिकेटेड लोग होते हैं, जो समाज में, ऐसा नहीं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी आराम से मस्ती कर रहे होते, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है मस्ती कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता है तो उसमें हेल्प करते हैं लोग। तो ये क्या हो गया, नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए। फ्लड, ड्रॉट एंड अर्थक्वेक के टाइम में ये लोग मतलब हेल्प करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नॉन पॉलिटिकल फंक्शंस। तो ये आपको 8 फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ना है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के नीड क्या हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है। तो इसी के बेसिस पे अब जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस बना करके अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। और जो भी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको नोट डाउन करके मेहनत करते रहना है, ठीक है। सो कीप स्टडिंग। थैंक you so much for watching the video and let me know how these videos are.
So thank you so much.